Hi everybody, namaskar. आशा करूँ समस्त प्रिपरेशन भल अच्छे. So let us start the most important current affairs on social issues. Embrace every challenge that I face because there is a chance for me to grow and improve. November 11, National Education Day. Birthday kaharo. The first Education Minister of India, Maulana Abul Kalam Azad. He was the Education Minister from 1947 to 1958. Tanko time re he emphasized on the girls' education and the compulsory education up to the age of 14. Apart from that, many quotations you can use his quotations. जब हमें social justice नो जो आंसर लिखो यू कैन यूज दिस कोटेशन. फ्यू आर every individual has the right to education that will enable him to develop his faculties and live a full human life. Second quotation, as a child of God, I'm greater than anything that can happen to me. Apart from that, Maulana Abul Kalam Azad yanko time re kon development हेतिला. During his time he tried to change the course, then self-reliant education is सब ऊपर काफ़ी काम करते. Transforming of education, you must have heard about the AICTE, the UGC. They were developed. Jamia Millia Islamia, IIT Kharagpur secondary board schools were established. He also contributed to the Sahitya Academy, the Lalit Kala Academy, the Indian Council for Cultural Relations, Sangeet Natak Academy, CSIR, that is Council of Scientific Industrial Research. Now, aji hame India at 75 years ago. Let us analyze ki education re what else is remaining to be conquered. What are the challenges in education that we are facing and a proper map. ये सब आपन को हेल्पफुल हम इन द मेन्स आंसर राइटिंग जोटी सोशल जस्टिस उपरे एजुकेशन रे आपन को लिखिबा को पड़िबो एज वेल एज योर ऑप्शनल पेपर्स. Now the first thing is that कि by 2030 India will have the largest number of young people, the largest young population in the world. Now if we want to harness this, then we have to work on two things: skilling and quality education. So what are the challenges कौन रहुछि? The first thing is adequate infrastructure नहीं. फ्रेंड्स इंडिया रो 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया रे रुहंती एंड रूरल एरिया रे फर्स्ट कथा यूनिवर्सिटी को भल यूनिवर्सिटी को एक्सेस नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चर रो बहुत कमी अच्छी. तापर अपन देखिबे कि सेठी ड्रॉप आउट रेट बहुत अधिका. लगभग 20% ऑफ गर्ल्स, 35% ऑफ बॉयज दे ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल्स एंड तांको जो रीजन अच्छे दे गिव इज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन. सो एमती जो स्टूडेंट्स अच्छा कौन करा जाय परिबो. सो वोकेशनल एजुकेशन राइट फ्रॉम दी क्लास 6 जोटी की इंटर्नशिप्स रहिबो माने दे आर लर्निंग ऑल्सो एंड दे आर अर्निंग मनी ऑल्सो. दीटा जिनस ही करें यही परिका सिस्टम आना जाय परिबो. सो दिस इज अ मेजर चैलेंज. सेकेंड थिंग इज आमर जीडीपी रो 3.5% रू भी कम इन्वेस्टमेंट करा जाउछि एजुकेशन रे. सो या को बढ़ेबार दरकार अच्छे. थर्ड, यूडाइस रिपोर्ट. यूडाइस कौन इंडिया भितर डिस्ट्रिक्ट लेवल रे देखा जाए कि कौटी कौन एजुकेशन रो बॉटल नेक्स रोचे चैलेंजेस रोचे. अकॉर्डिंग टू द यूडाइस नेटवर्क, द प्यूपिल टू टीचर रेशियो इन इंडिया इज वेरी लो. नेशनल लेवल रे इट इज 24:1 फॉर द एलिमेंट्री क्लासेस. Only 12% of the schools have internet facilities, 30% have computers, 42% lack furniture, 23% lack electricity, 22% lack ramp facility physical disability students का पाई. 15% रे अपना even washing facility, for example toilet, girls toilet ये सब भी नहीं. So these are the basic and yet very important challenges. Next thing is इंडिया भितर 25% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट. तो आमर जो सोशली schemes asuchi and the digital empowerment is there. So these people, they are remaining socially and digitally excluded also. Apart from that, brain drain is a big problem. Friends, after 10th students mane IIT, IIM परिका बड़ो competitions face करंती and the selection rate is very less. So they feel discouraged and एमने बाहर को चले जानते education करेबा पाई. Now that leads to a lot of brain drain in India. Then we can see that our education
is more of quantitative. आम quantitative तो है चलुचु. For example, gross enrollment ratio बढ़ुची for females. However, qualitative होनु. Qualitative माने कौन? Job specific जो education मिलेबा कथा. जमते हमें देखिले कि rural areas रे झियो माने and पुओ माने they are saying कि they are not interested in the studies. Now when they are not interested in studies माने कौन? They are not able to realize कि whatever हमें पढ़ो जो सेटा important केमती अच्छी. Okay, so they are not realizing it. तो सेठी किसी तांकर attachment रहुनी, experience किसी रहुनी. If you talk about even in the urban areas भी अपन कहबे, science and technology रो students बहुत कम, very less percentage are actually getting the जो practicals को experience करेबा, how do the cells look, so laboratory setup ये सब students को accessible रहू नहीं. Then class 3, class 4 छुआंका भितर देखा जाउची basic abilities are not there with the children. So all these problems is there. So we are in quantitative education हमें काफ़ी आगे जाऊँ, but in qualitative education we are lagging far behind. Now when we talk about the government schemes जहाँ एजाए they are operational. Some of the government schemes are NPTEL, समग्र शिक्षा अभियान, then प्रज्ञाता, UDICE, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिड डे मील स्कीम, PM श्री स्कूल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आपणकर जमती फॉर एग्जांपल कोविड पैंडेमिक है जाउची. सो एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, किंतु स्टूडेंट्स माने ऑनलाइन यूज भी तो करि परिबा कथा, तांको पाखरे मोबाइल फोन्स भी तो थिबा कथा. बट इंटरनेट पेनिट्रेशन टू द रूरल एरियाज, टू द रिमोट एरियाज इज वेरी वेरी लेस. हाउ डू दे यूज इट? नेक्स्ट कथा होची नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. सो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनुसार नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क रोचे. PM ई-विद्या, दीक्षा पोर्टल, स्वयं, MOOC, वर्चुअल ई-लैब्स, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब प्रॉब्लम रोचे. एजुकेशन फ्रेंड्स इज रिलेटेड टू 2 SDG. दीटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एतरे अचीव हे पारिबो इफ वी गो फॉर अ क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज क्वांटिटेटिव. फर्स्ट इज द SDG 4. अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर इक्वालिटी SDG 5. ए दीटा जक ही can be achieved if we are giving more into the education department. Next news होची EWS quota. So friends, EWS quota रे 10% reservations दिया जाता है economically weaker sections को, and these weaker sections are apart from the earlier reservations जमती ST, SC, OBC, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जोटा आगुरी दिया जाता है क्लास बेस्ड रिजर्वेशन. सो 103rd अमेंडमेंट रो जो EWS कोटा दिया जाइथिला एथिरे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 रे अमेंडमेंट करा जाइथिला. आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को एथिरे इंसर्ट करा जाइछि. सो इट वाज चैलेंज्ड कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, बिकॉज इन 1992 इंदिरा सावनी केस द मंडल कमिशन दे रेकमेंडेड कि जो रिजर्वेशन अच्छी ता उपरे गोटे सीलिंग रहिबो, 50% सीलिंग लिमिट विल बी देयर. सो इज इट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दिस वाज द क्वेश्चन. Recent now the Supreme Court has said कि it is not a violation of constitution. Rather there ये जो ceiling अच्छी, the ceiling is not inflexible. Basically आमे एटा भी कहि परिबा कि we are going more towards the modernization. So modernization माने कौन था? जेमती फर्स्ट आमे ग्रुप्स को रिजर्वेशन दौतलो, नाउ आमे इंडिविजुअल्स को रिजर्वेशन दौतलो. फर्स्ट कास्ट बेस्ड थिला, एबे क्लास बेस्ड रोचे. सो मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट जना पड़े. सेकेंड थिंग इज दैट कि जो अर्लियर रिजर्वेशन थिला इट वाज कवरिंग द ST, SC एंड बैकवर्ड क्लासेस. हावेवर जनरल कम्युनिटीज भितर भी काफ़ी लोक तले आस जाइछन्ति. जेमती फॉर एग्जांपल आगुरु कौन थिला, व्हाई डिड वी गो फॉर रिजर्वेशन इन द फर्स्ट प्लेस? We went for reservation because there were some communities, the backward caste. We wanted कि young को reservation दियो and they will come into the mainstream. But in 75 years हमें कौन achieve करे जो mainstream रे लोग कहीं पे वापस जाओ चुनते कि हमको reservation दियो. Okay, so this is competitive casteization. The higher caste is again coming, they are asking for reservations. So all these things have to be done properly. Whether आमर जो 75 years रे हमें जो reservation system को फॉलो करूँ से किसी पॉलिसी फेलियर रही, इम्प्लीमेंटेशन फेलियर थिला कि न थिला. सो दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. कहीं 1992 रु LPG रिफॉर्म्स भी थिला एंड वी ट्राइड कि आमर इनक्लूसिव डेवलपमेंट हो. हावेवर आज भी आप देखिए कि ओनली लिमिटेड sections of the people have been benefited. From this section also very marginal
families have been benefited. समस्तों को से benefit मिले नहीं. Still in the upper higher strata of jobs एबे भी जो percentage अच्छी from the SC, ST and OBC that is still very less. So whether एतरे policy failure थिला and poor आहुरी poor है चली चे. So this languishing into the poverty, perpetuation of poverty, ये कौन एमती ही है चलची. That is something we have to take care of. We have to examine and या को एग्जामिन करवा पर ही हमको जाना पड़ेगा कि whether this reservation is a panacea to the problems or not. Apart from that देखंतु SR Sino Commission या विषय recommendation देचंते. This commission is important. SR Sino Commission. EWS criteria, EWS में criteria कौन थिला 8 lakhs per annum रू कम income, agricultural land रो 5 acre रू कम थिबा कथा, 200 meter square रो residential area रू कम रहबा कथा. तो याको भी नहीं कि ना criticism अच्छे. क्रिटिसिजम कौन अच्छे इंडिया रे बहुत गुड़ाक स्टेट्स अच्छा डिफरेंट स्टेट रो डिफरेंट जीएसडीपी अच्छे. फॉर एग्जांपल गोटे साइड रे यू कैन सी गोवा विच हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एट 4 लाख. ऑन दी अदर हैंड आपण बिहार परिका पुअर स्टेट्स भी देखिए जोटी यू नो दिस पर कैपिटा इज ओनली 40,000. ओडिशा रे मे बी 90,000 पाखापाखि अच्छे. सो डिफरेंट स्टेट रे लिविंग कंडीशन डिफरेंट अच्छे. सो ताकू वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रू ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया भितर से आसूची कि नहीं. सो वेदर या ठीक से वेरीफाई करा जाए ये जो पूरा क्राइटेरिया अच्छी 8 LPA एंड 8 LPA संगे लैंड आउ ये सब रिक्वायरमेंट वेदर इट इज कंपैटिबल और नॉट. सो दीज ऑल चैलेंजेस आर देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन हियर. वे फॉरवर्ड कौन देखो फ्रेंड्स वे फॉरवर्ड हो 75 years रे आम रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो करूँ. स्टिल वी आर सीइंग कि दिस इज नॉट अ पेनाशिया. जदि पेनाशिया था ताहले जो लोअर कास्ट मार्जिनल यू नो कम्युनिटीज रो लोअर कास्ट रो जो लोक थे जहाँ आम चाहूलु कि दे शुड बी इम्प्रूव्ड, दे शुड हैव इम्प्रूव्ड. बट राइट नाउ वी आर नॉट सीइंग द इम्प्रूवमेंट. सो गिविंग येट अनदर रिजर्वेशन मे बी इट विल लीड टू more compartmentalization. Now friends, we know reservation is not the panacea to the problems. Rather government and we all should try that quality of education केमती बढ़ा जाए पारिबो. This other social upliftment measures केमती बढ़ा जाए पारिबो. And from the grassroots level, skilling, vocational education should be imparted ताकि the people will be motivated to become entrepreneurs. तो जब से मैंने entrepreneurs है they will be more job givers than job seekers. The next news is about telecast. Ajikali media is a very important thing because it reaches to huge amount of people, different sections of the society, and tankara mind be mold way because of media. So it is a very responsible organ. However, kebe unholy nexus between the you know these ruling parties and the media and many other unwanted issues. The real issues are covered up. So right now the Ministry of Information and Broadcasting they have come up with a notice कि जो भी टेलीकास्ट करुथिबा संस्था अछंती एवरी डे 30 मिनिट्स यांको सोशल इश्यूज उपरे या तो पब्लिक सर्विस या तो नेशनल इंटरेस्ट उपरे 30 मिनिट्स पर डे दे हैव टू मेक the content and the video. So except for the sports, wildlife and the foreign channel बाकी सबो टेलीकास्ट सर्विसेस have to seman को एजेंसीटा करबा को पड़िबो. आर्टिकल 19 डिस्कसेस अबाउट राइट टू प्रोफेशन एंड राइट टू प्रोफेशन रे से किछि भी करे परिबे. सो इज दिस गोइंग अगेंस्ट द राइट टू प्रोफेशन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सेकेंड थिंग होची कि खाली 30 मिनिट्स पर डे करदेले हम कि सपोज सकाळ 6टा बेले जणे उठे कि ना सोशल इश्यूज उपरे कथा होचंती. सो आर द पीपल गोइंग टू वॉच इट? तो याको गोटे प्राइम टाइम रे दबा कथा. सेकेंड थिंग कि कहा को हमें डाकुचु. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज अ केस ऑफ एग्रीकल्चर तो कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को डाक. इफ इट इज अबाउट साइंस सो कौन से रिसर्चर द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड दे हैव टू बी इनवाइटेड हियर. तो सबूर प्रोविजन एथिरे करबा को पड़िबो. राइट. सो इज इट इनफ या एथिरे आहुरी जिनस अच्छे? नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द चाइल्ड सेफ्टी. सो द पॉक्सो दैट इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस. ए एक्ट अनुसार द चाइल्ड क्या कहते 18 इयर्स तल को कौन से भी जो ह्यूमन बीइंग दे आर कॉल्ड एज अ चिल्ड्रन. सो लेट अस से इफ इट इज अ गर्ल 18 इयर्स तले ताको चाइल्ड ही कह. हावेवर जो एडोलेसेंट्स था इवन इफ पेरेंट्स डिसएग्रीमेंट रे दे आर लिविंग द हाउस कंसेंशुअल एक्ट जदि से मैंने करूँ इन दैट केस भी इट विल बी कंसिडर्ड अ रेप कहीं द गर्ल इज अ चाइल्ड. सो
हियर व्हाट इज हैपनिंग डू वी नीड टू रीथिंक माने यार जो पूरा बर्डन अच्छी बर्डनटा मेल उपरे पकाଯିବ दैट ही हैज कमिटेड द रेप द फैमिली प्रेशर एंड समटाइम्स ए सब केसेस कोर्ट पाखरे आसी जाए क्रिमिनलाइजेशन हैपन्स हियर इन केस ऑफ द ओल्डर एडल्ट्स एंड this is exploitative to some extent also you can say. So the Karnataka High Court has said कि age of consent को आखिर rethink करेगा कथा whether we should change the age or not. Now what are the challenges with respect to this issue? First of all misuse of law होची कहीं ये काफ़ी grey area को cover करची clarity नहीं. Second thing is the criminal justice system it is not being properly implemented. Blanket criminalization करा जाए परिबो ए केस रे misuse of the law है परिबो. Then burden on the courts. So all these things have to be taken care of. Now the thing is that कि सजेशन कौन देखो जो एडोलेसेंट्स अच्छी एजुकेशन सिस्टम रे ही बुझेबा को पड़ो कि अबाउट द आईपीसी पॉक्सो एक्ट अकॉर्डिंग रे केते एज तले चाइल्ड माना जाए व्हाट आर द लॉज ओके अंडर व्हाट दे आर एक्चुअली ऑपरेटिंग तो ये सब जिन स्कूल रे ही बुझेबा को पड़ो ताकि सिस्टम नॉन एक्सप्लॉयटेटिव रहू एंड क्रिमिनलाइजेशन इन दिस एडोलेसेंट कंडीशन ये न रहू बिकॉज वी नो कि पॉक्सो रे भी रिसेंटली अमेंडमेंट करा जाइथिला इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो हाइनियस ऑफेंसेस अच्छे तो सेठी सख्त रु सख्त सजा दबार हाउएवर समटाइम्स बिकॉज यू नो दिस एज काफ़ी सारा केसेस यार एम्बिट रे आसी जाए समटाइम्स इट ऑल्सो लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन एतरे आवरी दुटा न्यूज अच्छे इन द चाइल्ड फर्स्ट थिंग इज the national government Ministry of Home Affairs along with the states they are going to create different post जहाँ की रहिबो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशंस एंड ये ASI रैंक तल को रहिबे नहीं सो या को करा जिवो पुलिस एंड लॉ एज यू नो ये स्टेट सब्जेक्ट अच्छे so center with the help of states will create this office and in every police station there will be a child welfare police officer not below the rank of ASI. now इतरे गोटे थर्ड very important news अच्छे ताहा होची टू फिंगर टेस्ट सो फ्रेंड्स रेप इज अ हाइनियस क्राइम किंतु कौन सी भी रेप विक्टिम ऊपर जब टेस्टिंग करा जाए द कंसेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द रेप विक्टिम और हर वार्ड हर पेरेंट्स काठो भी कंसेंट दरकार अच्छे बट दीज ऑल थिंग्स वर नॉट लीगली mandatory. Justice Verma Commission according two finger test should not be done and right now Supreme Court कहचंती कि if anybody is held doing two finger test then he will be guilty of misconduct. So basically there are many other tests DNA test many other tests too which is done for the in the crime offense of rape. However two finger test एबे भी practice हुए problem होची it is violating the right to privacy of the victim. So just because a person is sexually active so फिर या ऊपर गोटे patriarchal thought process गोटे sexist thought process रोचे कि whether you know the victim is a victim. So एठी कौन होची victimization of the victim ए सब problems आहरी आसुची. So right now Supreme Court has said that two finger test जदि के करूचंदी they will be guilty of misconduct. Okay, so it is invalid. So these were all the news regarding the social changes. Friends, जदि वीडियो आपन को भल लागुची kindly share करंतु to maximum people. In the next video, I will bring more current affairs regarding environment ecology. So thank you so much. Namaskar.